Hi guys, so we'll be starting with lesson 19, the general meetings. Now, though this is a vast chapter, but it's relatively relatable. You can relate to meetings. You must be knowing generally, or you must have studied it somewhere. So let's first get how much do you know about meetings and the components of meetings. So let's start. Firstly, general meetings. Now, when I say general meetings, the name of the topic, what does it mean? Are we talking of meetings of directors or shareholders? Shareholders, correct. So, when I say general meetings, I'm talking about shareholders meeting. Second, how many types of general meetings are there? How many types of general meetings do you know about? Two. Very good. So one is annual general meeting. Okay? Annual general meeting is held once in a year. Now you think meeting just once in a year of the shareholders would be sufficient? Sometimes there could be emergency situations, some kind of a circumstance where they want to immediately call the meeting. Extraordinary circumstances. In such case, what kind of a meeting apart from annual general meetings if you held within the year, what are those meetings called? So they are called as extraordinary general meetings. These are held in exceptional circumstances where you cannot delay till the next AGM. So it is held between two AGMs. Now you tell me, अगर meeting बुलाना है shareholders का, how would you call them? Will you give up a call to everyone कि meeting है आ जाओ? What would be there? You would give a notice of the meeting. So very, very important concept is about notice of the meeting. So it's a, let's see, now here I'm checking of a notice of a annual general meeting. This is of Hindustan Petroleum we've seen, and this is of Tata's. This is the notice of the meeting, right? तो यहाँ पे अगर notice देखेंगे, they will write notice of, they have to number it, कौन सा वाला AGM hold कर रहे, the 79th AGM of which year, so they will write. यहाँ तक समझ में आ रहा है? Next, notice of the meeting. So when we have to invite the shareholders, we have to tell the shareholders कहाँ पे आना है, कितने बजे आना है, क्या क्या डिस्कस होगा, वो सब हम लोग नोटिस के अंदर होंगे. So नोटिस के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? It's called as the agenda of the meeting. Agenda is the matters to be discussed at the meeting. कि what is the agenda in the meeting? कि meeting में आना है, but what is the matters that will be discussed, that is called as the agenda. Some of you go to see the very, very important. What have they given? ये company law में नहीं मिलेगा तुमको, but secretarial standards में मिलेगा. That a route map should be given of the AGM. रूट मैप क्या होता है कि हॉल से तुम ट्रेन से आ रहे हो तो कौन सा ट्रेन पकड़ना है, कौन सा बस पकड़ना है, रूट मैप क्या होगा, तो ये पूरा दिया जाता है. ये किधर दिया है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स. सो आईसीएसआई ने इशू किए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स SS1 एंड SS2. SS1 किसके रिलेटेड है? कैन यू टेल मी? बोर्ड मीटिंग. एंड SS2 इज रिलेटेड टू जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स का मीटिंग. तो वो लोग ने बोला कि रूट मैप देने का ताकि लोग आ सके वहां पे. एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या ये नोटिस के साथ में ही आता है, सेक्शन 105 के अंदर दिया हुआ है. क्या नाम है इसका? प्रॉक्सी फॉर्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर सेइंग इट शुड बी ड्यूली साइंड, डिपॉजिटेड एट लीस्ट नॉट लेस देन 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग. तो प्रॉक्सी फॉर्म भी दे देना है. कमिंग बैक, और नोटिस में से एक और चीज नोटिस किया होगा तुमने, टॉकिंग अबाउट प्रॉक्सी. सुना है? प्रॉक्सी क्या होता है? ओके, अ पर्सन हु कैनॉट अटेंड द मीटिंग कैन अपॉइंट अनदर हु विल वोट ऑन हिज बिहाफ. सो अ मेंबर हु कैनॉट अटेंड द मीटिंग विल अपॉइंट अनदर पर्सन who will attend and vote on his behalf. Does proxy have to be a shareholder of the company? Proxy need not be a shareholder. Then comes, it's called as a chairman of the meeting. What is the role of the chairman? He will preside over the meeting. He gives his opening speech.
he decides who will speak first, he maintains decorum. और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बंदे के पास में जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स आता है तो एक एक्स्ट्रा वोट आ जाता है, उस एक्स्ट्रा वोट को क्या बोलते हैं हम लोग? कास्टिंग वोट। समझ में आया? तो आगे देखते हैं, जब मैटर इज पुट टू वोट, certain matters require ordinary resolution and certain matters require special resolution. What are ordinary resolution? Resolution का मतलब क्या होता है? Decision. Resolution means decision. Certain matters which are not that serious require ordinary resolution. So certain matters require ordinary resolution means it requires consent of 51 shareholders. आगे स्पेशल रेजोल्यूशन, जो मैटर सीरियस होते हैं, लाइक अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम, बेसिक कंपनी डिटेल्स, चेंज ऑफ नेम, ऐसे कुछ बड़े मैटर्स हो गए, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। तो अगर ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है तो थोड़ा और कंसेंट चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन में कितने लोगों का कंसेंट चाहिए? 75%. Okay, consent is required to pass the. Always matters will be put to vote by show of hands unless a poll is demanded. पोल में क्या होता है? मीटिंग के अंदर मैं सबको पूछूंगा कि भाई आपका जितने भी है पोस्टल बैलेट में असेंट या डिसेंट डाल के आओ, एक चिट्ठी घुमाएंगे, वो चिट्ठी के अंदर तुम येस नो बोलोगे कि रेजोल्यूशन नंबर 3 यू वांट टू अप्रूव और डिसअप्रूव, एंड देन यू विल पुट इट एंड देयर विल बी अ स्क्रूटनाइजर, पीछे एक काउंटिंग करेगा तुम्हारे वोट्स, जैसे हम लोग के भी इलेक्शन में वोट करते, पीछे काउंट करते, फिर वो डिक्लेरेशन चेयरमैन को बताते कि भाई ये असेंट हो चुका है, इसका प्रपोजल हो चुका है, तो वैसे करके करते। तो डू यू थिंक ये ऑन द स्पॉट डिसीजन आएगा? पोल का रिजल्ट इमीडिएट आएगा? नो. सो इट कैन बी डिक्लेयर्ड लेटर ऑन, इट विल बी पुट अप ऑन द कंपनी वेबसाइट. सर्टेन मैटर्स रिक्वायर्ड इट टू बी डन इमीडिएटली. अगर अडजर्नमेंट लेना है, मीटिंग अडजर्न होनी चाहिए या चेयरमैन को बदलना है, तो दे कैन डू दैट. समझ में आया? पोल ना, ठीक है. जब व्हेन अ रेजोल्यूशन इज पुट टू वोट बाय शो ऑफ हैंड्स, इट इज गोइंग टू बी काउंटेड एज 1 पर्सन 1 वोट. तो 2 शेयर भी है तो भी एक ही काउंट होगा. तो जो मेजॉरिटी, जिनके पास में ज्यादा शेयर्स है, वो लोग डिमांड करते पोल कि हमको नहीं जाना है बाय शो ऑफ हैंड्स, इंपॉर्टेंट मैटर है, पोल लगाओ. तो पोल में क्या हो जाएगा? सीधा कहानी बदल जाएगी. इट विल बिकम 1 share 1 vote. So then तुम्हारा वैल्यू ऑफ होल्डिंग दिखेगा. समझ में आया इतना? अब जब मैटर पास हो गया, फिर हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे कि फ्यूचर में, नहीं तो याद नहीं रहेगा. तो वो कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रिजर्व करेंगे हम लोग? What is that register called where you will preserve who had come, how many had come, who was the chairman, which all proxy had come? That is called as minutes book or minutes meeting, minutes of the meeting. Minutes of the meeting is the decisions taken at the meeting, what all matters were discussed, everything will be recorded in the minutes. This minutes is a evidence which can be taken कि भाई 3 महीने पहले जो मीटिंग पास हुई थी उसमें ये सारे मैटर्स लिखे थे, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुए? कंपनी ने देखो मिनट्स बुक में लिखा था कि डिविडेंड देंगे, अभी तक क्यों नहीं दिया है? ओके, सो ये सब मिनट्स बुक में रिकॉर्ड होता है. दिस इज द मेन ब्रीफ टर्म्स. नाउ लेट्स कम टू कॉन्क्रीटनेस, मोर स्पेसिफिकेशन कि कंपनी लॉ में है क्या सीन. सेक्शंस ले लेते हैं, कहां से कहां तक है. सो द सेक्शंस कम फ्रॉम चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीटिंग्स. वहां से लेके इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 88 एंड गोज ऑन टिल सेक्शन 122. इसमें ही तुम्हारा सारा मीटिंग्स कवर हो जाता है. और ये चैप्टर में भी, एंड आई वुड एडवाइस यू ऑल ऑन योर मोबाइल ऐप, ऑन योर मोबाइल यू हैव टू डाउनलोड अ MMJC का ऐप, कंपनीज एक्ट 2013, वहां से तुम अपने सेक्शंस पढ़ो. सो लेट्स सी, we are talking, what is the name of the thing that you have to do for meetings? Chapter 7 of Companies Act, from section
88 टू कितना था, टू 122 टॉक्स अबाउट मीटिंग्स. ओके, बट इसका नाम क्या लिखा है वो लोग ने, स्पेसिफिकली मीटिंग्स करके हेडिंग नहीं है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इसके अंदर जो दिए भी है मीटिंग्स के बारे में, दे स्पोकन अबाउट मीटिंग्स. इसके जो फॉर्म नंबर्स भी है वो MGT करके है, MGT 1 टू MGT 14. कैन यू टेल मी MGT 14 किसके रिलेटेड है? Start and finish it off quickly. We are doing lesson 19, general meetings. Now from this chapter I would advise you study directly from the app. It will be much more in a good lucid flow and I'll mark what is important. ठीक है. Now meetings में बता रहे कि ये mark कर सकते हो important. Section 118 subsection 10 says that SS1 and SS2 have to be followed by all companies. Secretarial standards with respect to board meeting and general meeting has to be followed. Further, members meeting. Members मतलब shareholders की meeting. दो टाइप की होती है, annual general meeting and extraordinary general meeting. Okay? अब क्लास मीटिंग भी बोले. क्लास मीटिंग क्या होता है, फॉर अ स्पेसिफिक क्लास का ही तुम मीटिंग कर रहे हो तो उसको क्लास मीटिंग बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाइनल का लेक्चर ले रहा हूं तो क्या मैं फाउंडेशन वालों को बुलाऊंगा? नहीं. तो जब उनकी बात ही नहीं होने वाली है तो उनके बारे में बुला के कोई फायदा नहीं है. तो अगर मैं सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट्स वेरी करने वाला हूं तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुलाऊंगा, या मैं सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स का राइट्स वेरी करने वाला हूं, डिबेंचर होल्डर्स, तो आई विल कॉल ओनली डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स. तो ये एक पर्टिकुलर क्लास की ही मीटिंग कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू योर एनुअल जनरल मीटिंग. सो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो, बिकॉज जो भी कंपनी सेक्रेटरीज है सब मीटिंग्स को वो लोग ही पूरा A to Z हैंडल करते हैं. सो लेट्स सी सेक्शन. देखो इसके सेक्शन भी देखते हैं. कहां से चालू किया ये लोग ने? सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग. और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन सा है? सेक्शन 100. सो लेट्स सी, अगर हम लोग बात कर रहे हैं मीटिंग्स में AGM की, तो कैन यू टेल मी AGM कौन से सेक्शन में है? 96. बाय हार्ट यू शुड नो forever till it changes. And this also इमरजेंसी होता है तो कौन सा नंबर घुमाते हो तुम? 100. तो ये भी कौन सा सेक्शन घुमाने का? 100 फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस. समझ में आया? नाउ अगर AGM में जाएंगे तो उसमें टाइम पता कहां पे रखना है, कौन से दिन पे नहीं रख सकते, पब्लिक हॉलिडे पे नहीं रख सकते, देखते हैं. सो अगर मैं सेक्शन 96 सीधा ओपन करता हूं, ठीक है, सो एवरी कंपनी, 1 second, लेट्स गो फ्रॉम द मॉड्यूल. ओके, नाउ एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में कितनी बार साल में होल्ड करना चाहिए? वंस अ ईयर. पहला AGM कितने टाइम में होना चाहिए? ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. एग्जाम सीधा पूरा सेक्शन 96 बाहर करके बैठ जाने का. इसके अंदर आई टेल यू क्या क्या टर्म्स दिए. पहला एनुअल जनरल मीटिंग कितने टाइम में होल्ड करना है? विद इन 9 months फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. तो 9 महीने के अंदर क्या होगा? पहला AGM. ठीक है, इसका एक्सटेंशन ले सकते हो. बोलते हो नहीं नहीं 9 महीने नहीं, थोड़े और महीने चाहिए मुझे, मिल सकता है ऐसा एक्सटेंशन. तो 9 महीने के पहले हो सकता है बट 9 महीने के बाद हो ही नहीं सकता, बिकॉज द लास्ट डेडलाइन इज व्हाट? 9 months.
Clear इतना? So annual general meeting should be held within 9 months of the first annual general meeting. Then subsequent annual general meetings, मतलब Reliance Industries जो अभी होल्ड करेगी, they are called as subsequent AGM, should be held within 6 months from the close of the financial year. तो first AGM is held within 9 months and subsequent AGM has to be held within 6 months. तो तुम नोटिस करोगे ना, जैसे साल खत्म होता है, कभी खत्म होता है साल? 31 मार्च. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो सितंबर एंड में इतने लोग की मीटिंग्स होती है जिसकी कोई हद नहीं है. अभी भी देखोगे मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, तो ऑलमोस्ट सितंबर तक सारी एजीएम्स होनी पड़ेगी. अभी देखेंगे कोविड में क्या आता है इसका नोटिफिकेशन. द गैप बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग शैल नॉट बी एक्सीड 15 मंथ्स. एंड इफ यू नो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना एजीएम होल्ड भी कर दिया था. नाउ उनका वोटिंग कैसे कराएंगे वो लोग? अब मीटिंग तो फिजिकली रख नहीं सकते हैं, तो वो लोग ने क्या पोस्टल बैलेट के थ्रू सबको पोस्ट से भेज दिया, पोस्ट से वो लोग ले सकते हैं और उसका लाइव ये कर दिया रिले. द टाइम गैप बिटवीन टू एजीएम शुड नॉट एक्सीड 15 मंथ्स. मूविंग फॉरवर्ड, ये सब मार्क करो इंपॉर्टेंट. एवरीथिंग अबाउट 96 यू नीड टू नो. एक्सटेंशन ऑफ एजीएम. सोचो फॉर एनी रीजन यू कुड नॉट हेल्ड द एजीएम, then you can get a extension with the ROC for more 3 months. However, first AGM cannot be extended. तो अगर end of financial year हुआ, end of year that is 31st March, कितने टाइम के अंदर मेरे को मीटिंग रख देनी चाहिए फर्स्ट एजीएम? फर्स्ट एजीएम कितने टाइम में हो जाना चाहिए? 9 मंथ्स के अंदर. सब्सिक्वेंट एजीएम्स होंगे वो कितने टाइम में होंगे? 6 मंथ्स के अंदर. बट इसको एक्सटेंशन दे सकते हैं. फॉर सब्सिक्वेंट यू कैन गेट प्लस 3 मंथ्स. यहां पे ऑलरेडी एक्सटेंडेड दिया हुआ है. दैट इज व्हाट दे हैव गिवन. डेट, टाइम एंड प्लेस सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. बिटवीन 9 to 6 इज द टाइम. इट शुड बी ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. It should be held at the registered office or at some place within the city where the registered office is situated. समझ में आया? Very very important. Annual general meeting of unlisted companies may be held at any place in India if consent is given in writing by all the members in advance. Now the AGM cannot be held on a public holiday. See, on any day that is not a national holiday. तो national holiday भी क्या दिया है वो लोग दे रहे हैं. Means ये भी मार्क कर सकते हैं important. So can I hold a AGM on a national holiday? Yes or no? Answer is no. It's given in your section 96. अभी आगे देखते हैं. हम लोग ने नोटिस ऑफ मीटिंग देखा था. नोटिस ऑफ मीटिंग के अंदर ना अगेन ये सेक्शन हो गया 100. Let this be there. जो नोटिस ऑफ मीटिंग है, नोटिस ऑफ मीटिंग इज गिवन इन योर सेक्शन 101. इसके साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा इन 102. ये क्या है? नोटिस ऑफ मीटिंग. आर वी क्लियर विद दिस? तो नोटिस ऑफ मीटिंग जो हम लोग ने देखा था वो कौन से सेक्शन के अंदर जाता है? 101. उसके साथ में जो स्पेशल बिजनेसेस होते हैं ना, उसके लिए एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा. तो समझते क्या है? What I told you, अजेंडा में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है अजेंडा? अजेंडा इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? 2 parts. One is your ordinary business
and the second is your special business. ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेस, ठीक है। अभी ऑर्डिनरी बिजनेस सिर्फ 4 ही है और उसका कोडवर्ड है अड्डा। ओके, ओनली दीज आर ordinary business, rest all is called as special business. For special business you have to give a explanatory statement. For ordinary business explanatory statement is not required. Let's see ordinary business क्या है, मतलब क्या, लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। ये जब ऑर्डिनरी चीजें रख रहे हैं, मतलब हर साल होती ही होगी। डिविडेंड के बारे में बात होता होगा, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात होता होगा, अकाउंट्स अडॉप्टिंग के बारे में बात होता होगा, और एक और ए है, वो क्या है, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट के बारे में बात होता होगा। रेस्ट ऑल इज कॉल्ड एज स्पेशल बिजनेस। आर वी क्लियर विद दिस? सो हाउ मेनी ऑर्डिनरी बिजनेसेस आर गिवन? ओनली 4. फॉर दीज 4 यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन। समझने की बात है कि ये सब तो होने ही वाला है, बट अगर मैं बात कर रहा हूं कंपनी बंद करनी है, तो तुम बोलोगे यार ये तो या नाम बदलना है कंपनी का या जगह बदलना है, तो ऑर्डिनरी में नहीं आया तो बताओगे तुम स्पेशल बिजनेस में, उसके साथ में छोटे में एक्सप्लेन भी करोगे कि ये क्यों करना चाहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों बता रहे हैं। तो एक देखते अपने एग्जाम्पल क्या दिया ये लोग ने। हम लोग देख रहे थे ये, ओके, तो लेट्स सी इसका ही देखते हैं। नोटिस ऑफ मीटिंग। इन नोटिस ऑफ मीटिंग टेल मी ऑर्डिनरी बिजनेस में कौन से 4 थे? अड्डा, ओके, डिविडेंड, तुम्हारा डायरेक्टर्स, ए से तुम्हारा ये वापस डायरेक्टर, ए से ऑडिटेड बैलेंस शीट और अकाउंट्स प्लेस कर रहे हैं, और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा नहीं है, मतलब नहीं कर रहे होंगे। क्लियर इतना? तो ये अपना ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया। हैव दे एक्सप्लेन व्हाई आर दे डूइंग इट? नो, इट्स कॉमन सेंस, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बट लेट्स सी द अदर वे अराउंड। इफ आई एम सीइंग अ स्पेशल बिजनेस, लाइक एग्जाम्पल बोरोड फंड्स, बोरोइंग ऑफ फंड्स अप टू, छोटा अमाउंट है 12,000 करोड़, तो यहां पे देखोगे शॉर्ट में नीचे कहीं ना कहीं वो लोग एक एक्सप्लेनेशन देंगे उसके रिलेटेड। Let's see their explanatory statement. So they must have explained within this only, otherwise it will always be there. Let's see. Here, please refer for resolutions, explanatory statements and notes. Please refer the notice. Let's see, explanatory statement. So they are saying that it has been annexed separately. The explanatory statement is given, is annexed separately. किस में दिया है? Section 102. So coming back, so 4 things are given: directors, dividend, appointment and remuneration of directors. तो अड्डा दिया हुआ है financial statements, accounts, auditors, directors and dividend. So these are ordinary business and these are special business. Clear? So you can mark this as important. Now, penalty for not holding AGM
यू कैन जस्ट रीड इट वंस. पेनल्टी क्लॉज है कि कितना लगेगा, अप टू 1 लाख रुपीज. Convening a valid general meeting you can cancel. Now coming to your next is extraordinary general meeting. Super duper important कि extraordinary general meeting रखना है. Tell me one thing कि कब बुलाना चाहिए, ये किसको लगेगा कि बहुत important serious matter है कि बुलाओ, तो board can by themselves call, or there can be some people who will make a request to the board of directors and the board of directors will listen to their request. So on request or requisition may they will call, or if the board of directors do not call on request of the people, then by the requisitionist themselves. When I say requisitionist का मतलब क्या है, persons requesting, they can call it themselves, और lastly by tribunal अगर उनको कभी भी लग रहा है तो. Let's see. So section 100 we have seen talks about EGM. By the board of directors खुद ही extraordinary general meeting बुला सकते हैं, और by board on requisition of members. So when I say requisition means what? On request of the members. अब कितने members को लगना चाहिए? At least 10%. So they have given you at least 1/10 of the share capital should give in writing. तो सोचो जो लोग के पास में 10% शेयर्स है वो लोग सब लिख के बोर्ड को दे सकते हैं कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ. बट व्हाट इफ द बोर्ड डज नॉट कॉल इवन आफ्टर रिसीविंग द नोटिस? तब ये थर्ड वाला आता है, बाय द रिक्विजिनिस्ट देमसेल्व्स. अगर मैंने बोर्ड को रिक्वेस्ट किया फिर भी नहीं बुला रहे तो बोर्ड तो रिक्विजिनिस्ट खुद ही मीटिंग बुला लेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड इसका क्या टाइमलाइन दिया है. यू हैव टू अंडरस्टैंड डेट्स for this, for EGM. अब EGM में क्या है, requisitionist की बात हो रही है. Requisitionist means what? Requesters. So इसमें डेट्स क्या है, 21 days slash 45 days slash 3 months. तो हम लोग समझ रहे हैं कि अगर X, यहां से टाइमलाइन देखो, यहां पे ये लोग ने एक वैलिड रिक्विजिशन दिया हुआ है. They have given a valid requisition, means request to board of directors. Can you tell me how many people need to request to call a extraordinary general meeting members wise? कितने लोगों का कंसेंट चाहिए हम लोग ने देखा था अभी, कम से कम कितना, तो कम से कम 10% ऑफ द पीपल शुड अग्री कि भाई मीटिंग बुला लो, इमरजेंसी है. So now pay attention very carefully. The board should proceed to call a meeting. अगर मुझे सोचो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में 10% लोग का साइन आ गया है कि भाई मीटिंग बुलाओ, तो बोर्ड शुड विद इन 21 days प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग. तो 21 दिन के अंदर वो लोग प्रोसीड करेंगे. हाँ भाई नोटिस दे रहे हैं, हाँ रख रहे हैं, 21 दिन के अंदर दे शुड प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग विद इन 45 days. ये सब यही डेट से, डेट एक्स से ही काउंट होगा. डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ वैलिड रिक्विजिशन से 21 दिन के अंदर आवाज आएगा कि मीटिंग होने वाली है. और कितने दिन में होगा? विद इन 45 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ वैलिड रिक्विजिशन. अगर नहीं हुआ ये दोनों में से तो रिक्विजिनिस्ट खुद ही मीटिंग बुला लेंगे विद इन 3 months. सो लेट्स अंडरस्टैंड क्या है ये. टाइमलाइन को थोड़ा और पढ़ते हैं. आवाज कितने टाइम में आ जाना चाहिए कि मीटिंग होने वाली है? 21 days के अंदर. और मीटिंग क्या आएगी कि भाई कम से कम 45 days के अंदर मीटिंग होल्ड हो जाएगी. ये सब कहां से काउंट हो रहा है? डेट एक्स से ही काउंट हो रहा है. तो यहां से 21 दिन के अंदर आवाज आ जाएगा, बोर्ड शुड प्रोसीड टू कॉल
या फिर यहां से यहां तक 45 डेज के अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। तो कितने दिन, अगर सोचो लास्ट डे पे वो लोग ने बोला कि हाँ हम रख रहे, तो कितने दिन बचते फिर? ट्वेंटी 24 डेज बचते हैं अगर लास्ट डे पे बुला रहे, तो इसके अंदर वो लोग को मीटिंग रख देनी चाहिए। बट अगर तुम सोचो तुम रुके थे लास्ट डे तक और कुछ भी आया ही नहीं, मीटिंग नहीं रखे वो लोग ने, तो विद इन 3 months फ्रॉम डेट एक्स, फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ वैलिड रिक्वेजिशन, विद इन 3 months द requisitionist can call the meeting themselves. So within 21 days from X they should proceed to call a meeting. The meeting should be called within 45 days by the board of directors from receipt of valid requisition. अगर वो टाइम पे नहीं आया तो फिर requisitionist खुद ही मीटिंग कर लेंगे विद इन 3 months. तो अगर सोचो लास्ट डे तक तुम रुके थे और लास्ट डे तक कुछ भी आवाज नहीं आया, तो तुमको कितने टाइम के अंदर requisitionist को मीटिंग होल्ड रखनी करनी पड़ेगी? विद इन 3 months फ्रॉम डेट एक्स, तो कितने दिन बचे? 45 डेज। समझ में आया? सो मीटिंग शुड बी कन्वीन्ड विद इन 45 डेज, बट अगर नहीं किया तो फिर 3 months के अंदर मीटिंग, 3 months मतलब 90 डेज, तो 45 डेज तो यहां तक ही हो गए, तो और 45 डेज के अंदर रिक्वेजिशनिस्ट खुद ही मीटिंग बुला लेंगे और जो भी खर्चा वर्चा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भरना पड़ेगा और जो भी डिसीजन देंगे वो वैलिड हो जाएगा। सो लेट्स रीड व्हाट इज गिवन इन द लॉ नाउ। By the requisitionist, if the board does not call within 21 days from the receipt of a meeting, does not within 45 days proceed to call a meeting on a day not later than 45 days. Okay, then the meeting may be called and held by the requisitionist themselves. However, in case the meeting should be held within a period of 3 months from the date of receipt of the valid requisition. क्लियर है इतना? तो ये मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट। तुम सोचो जिस दिन पे रिक्वेजिशनिस्ट ने मीटिंग बुलाई, ताजवाज में कहीं पे भी बुला दिए और वहां पे क्वारम नहीं आया, तो मीटिंग क्या हो जाएगी? अ मीटिंग कॉल्ड बाय द रिक्वेजिशनिस्ट, इफ वहां पे क्वारम नहीं आता है, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट नहीं आए, तो मीटिंग विल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसल्ड, ये पोस्टपोन नहीं होती है। और अगर लास्ट में ट्राइब्यूनल, इफ दे फील एनी टाइम दे कैन कॉल अ मीटिंग। क्लास मीटिंग भी है, फॉर अ सेपरेट क्लास मीटिंग विल बी हेल्ड। टाइप्स ऑफ मीटिंग मार्क करो इंपॉर्टेंट। कितने टाइप्स की मीटिंग होते हैं? ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। ना ऑर्डिनरी में कितना कंसेंट चाहिए? कैन यू टेल मी? 51, बट ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है, लेट्स अंडरस्टैंड। वैसा एक्चुअली नहीं दिया हुआ है। व्हेन द वोट्स इन फेवर आर ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट, लैंग्वेज ये यूज किया है। 51 ऐसा नहीं लिखा है। अगर तुम सोचो 6 जन ने हाँ बोला और 7 जन ने ना बोला, या तो वो क्या होता है कि 50 पॉइंट समथिंग भी हुआ ना तो मेजॉरिटी हो गई ना, तो इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी 51। 50 के ऊपर भी गया ना, 50 पॉइंट समथिंग फेवर में आ गया, तो मीटिंग विल बी पास्ड। सो व्हाट है दे हैव गिवन व्हेन, एंड टेल मी वन थिंग, द वोट्स कास्टेड इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट, तब बोलेंगे कि हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। तुम मुझे बताओ, व्हाट इफ कितने सारे शेयर होल्डर्स आई नहीं मीटिंग में, क्वारम था, तो क्या खाली जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका ही काउंट होगा? फॉर एग्जाम्पल देर आर टोटल 100, ये एग्जाम्पल देखो, टोटल कितने मेंबर्स है? 100 मेंबर है। 100 मेंबर में से खाली 80 केम, उसमें से 70 वोटेड, और 70 वोटेड में से 36 फेवर में आए।
favored resolution. So is the resolution passed? Is resolution, ordinary resolution passed? क्या लगता है? अब क्या मेरे को मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स देखना है कि मेंबर्स हु वोटेड उनका देखना है? Is the resolution passed? Yes or no? Yes, because the persons who voted will be counted. So the votes casted in favor should be greater than votes casted against. So those who abstained उनको नहीं काउंट करेंगे और जो मीटिंग में नहीं आए वो भी काउंट नहीं होगा. समझ में आया? वैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन व्हेन द वोट्स casted in favor are 3 times the votes against, तब हम बोलेंगे क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा. votes casted in favor should be greater than 3 times the vote casted against. तो खाली 3 का टेबल आना चाहिए तुमको टू टेल मी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकता है कि नहीं. अगर यहां पे 7 वोट अगेंस्ट आए तो कितने वोट्स इन फेवर आने चाहिए? हाउ मेनी? 21. when the votes casted in favor are 3 times the votes casted against, तो greater than or equal to, तो 21 भी वोट्स आ गए ना, तो वी विल से दैट इट इज अ रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड. are not less than 3 times, so they are not less than 3 times. समझ में आया? तो resolution will be passed if 21 persons voted in favor when 7 have voted against. समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट है. जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है कौन सा फॉर्म भरते हैं हम लोग? आरओसी को इंटीमेट किसमें करते हैं? MGT 14. इट्स अ फॉर्म टू रिपोर्ट इट टू आरओसी. अब आता है रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. आई विल जस्ट ड्रॉ इट आउट. क्या है ये? कैन यू टेल मी किसके क्या रिजेंबल कर रहा है ये? क्या है ये? कैन एनीवन टेल क्या लग रहा है ये? बॉम्ब. ठीक है. सो जब तुमको बॉम्ब फोड़ना है तब क्या देने का कंपनी के अंदर? स्पेशल नोटिस. तो वहां पे स्पेशल नोटिस के बाजू में लिख सकते हो बॉम्ब, उसके बाजू में लिखना है, एग्जाम में नहीं. कॉन्सेप्ट क्या है ना कि जब भी अब ये स्पेशल नोटिस कौन किसको देता है? कंपनी मेंबर को देती है कि मेंबर कंपनी को देता है? First, who gives the notice? Company gives to member or member gives to company? Company to member. तो यहां पे क्या होता है ना, उल्टा होता है. By member to company. What special notice? स्पेशल नोटिस होता है क्या है? जब तुमको मेंबर को बॉम्ब फोड़ना है कंपनी के अंदर तो वो स्पेशल नोटिस देगा. अब ये स्पेशल नोटिस 7 days बिफोर द मीटिंग देना पड़ेगा. 14 days बिफोर द मीटिंग. 14 days बिफोर मीटिंग देना पड़ेगा. मेंबर को देना पड़ेगा, कंपनी को. अब होता क्या है, अगर कोई भी मेंबर को या तो रिमूव और रिप्लेस, अगर मेंबर को रिमूव और रिप्लेस करना है 2 मेजर प्लेयर्स को, एक है तुम्हारा ऑडिटर और दूसरा है तुम्हारा डायरेक्टर. अगर इसमें से मुझे कुछ भी ऐसा करना है
कि भाई मेरे को, मैं चाहता हूं कि डायरेक्टर फ्रॉड आदमी है, मैंने उसके अगेंस्ट फाइल किया, मॉरल टर्पिट्यूड का केस फाइल किया, मेरे को नेक्स्ट मीटिंग में वो बाहर चाहिए, आई वॉन्ट हिम टू बी रिमूव. तो इफ आई वॉन्ट टू मेक सच अ प्रपोजल फॉर रिमूवल, आई कैन नॉट जस्ट गो इन द मीटिंग एंड टेल, देखिए मैं आपको डायरेक्टर के कोई वीडियो बताना चाहता हूं, and then you play it on the DVD player and everyone is having popcorn and watching. So that's not going to work. What do you have to do? 14 days before the meeting you have to tell कि ये मैं चाहता हूं कि Venkateshwar should be removed from the directorship because he is a fraud, etc, etc. Okay, now once company gets that notice, it's like a bomb. डायरेक्टर को भी जाएगा कि भाई वेंकटेश्वर तेरे को निकालने की बात आ रही है, तो या तो तुझे निकाल रहे या तो तेरे को रिप्लेस कर रहे हैं. तो वेंकटेश्वर जो डायरेक्टर है वो भी अपना लेटर देके सबको घुमाएगा और मीटिंग में फिर क्या होगा, बॉम्ब, थोड़ा धमाका होगा, एंड देन दे विल डिसाइड. क्लियर है ना? सो यहां पे देखो, मैटर्स इन विच स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड. इधर देखो यहां पे ऑडिटर लिखा होगा और नीचे में क्या लिखा होगा, डायरेक्टर. And if you want to that he should not be reappointed or that the director should be removed, तब तुम ये स्पेशल नोटिस दे सकते हो. तो मेंबर विल गिव टू द कंपनी that I want these two things to happen or any of these things to happen. He will have to sign. और ये शेयर होल्डर भी क्या रहेगा उसके पास में, टेल मी वन थिंग, मेरे पास में एक शेयर है, क्या मैं चैलेंज कर सकता हूं आई वॉन्ट मुकेश अंबानी आउट एक शेयर पे? तो वो बोलेंगे भाई आपके पास में भी लिमिटेड शेयर्स होने चाहिए टू डिमांड दिस काइंड ऑफ टू पुट सच अ रेजोल्यूशन. यू मस्ट होल्ड एटलीस्ट 1% ऑफ द वोटिंग पावर और यू शुड हैव अ सम ऑफ एटलीस्ट 5 लाख रुपीज. सो आई शुड बी होल्डिंग एटलीस्ट 1% ऑफ द वोटिंग शेयर्स और 5 लाख रुपीज वर्थ शेयर्स. क्लियर है ना? So they haven't given you in detail, so you can limit it to that much only. So here you have resolutions. Special notice भी देखोगे, is filed, is given by member to company not earlier than 3 months and but 14 days before the meeting. I have to give 3 months के पहले of the meeting नहीं, और 14 days के पहले. The company receiving the notice will give a notice to the members at least 7 days before the meeting. तो मैं 14 days before तुमको बताऊंगा और कंपनी फिर बाद में सबको सर्कुलेट करेगी at least 7 days before. Now section 117 talks about MGT 14, not too much important. Special resolution के लिए कौन सा फॉर्म भरना है? What we discussed, form MGT 14 for special resolutions. Okay, I'll tell you also how to learn the sections in order. So right now just relax. Notice of the meeting, inform करना है कि भाई मीटिंग में आओ. कितने दिन पहले बताना पड़ेगा? At least 21 days before the meeting. And section 8 companies will give 14 days before the meeting. क्लियर डेज मतलब क्या? डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ डिस्पैच शुड बी एक्सक्लूडेड. तो ये एक पढ़ सकते हो इसको, इंपॉर्टेंट. क्लियर डेज मतलब क्या? अब नोटिस ऑफ मीटिंग सबको जाएगा. क्या अगर इमरजेंसी है तो मैं 21 दिन तक नहीं रुक सकता? नोटिस एजीएम बुलाना है, ईजीएम बुलाना है, तो वहां पे लिखा है यू हैव टू गिव 21 डेज नोटिस. But what if company wants to call a meeting with shorter notice? कि यार परसों मीटिंग रखनी है, आ जाओ. हो सकता है ऐसे परसों मीटिंग रखनी है, आ जाओ. होता होगा मेंबर्स मीटिंग में, yes or no? पॉसिबल है? yes. अगर तुम सोचो पब्लिक कंपनी है, बस 10 लोग हैं, सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, सब फैमिली मेंबर्स है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, फैमिली ग्रुप में डाला, परसों मिलने का है सबको, तो वो लोग कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्या बोल रहे हैं वो लोग? एटलीस्ट 95% ऑफ द मेंबर शुड अग्री टू दिस, नॉट
meeting may be called by giving a shorter notice if consent is given either in writing or electronically by at least 95% of members. तो हो सकता है अगर सारी मेरे फैमिली मेंबर्स है तो वो लोग अपने फैमिली ग्रुप पे डाल के जल्दी बुला सकते हैं, वो लोग को 21 दिन रुकना जरूरी नहीं है. बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर लिस्टेड कंपनीज एंड ऑल ऑफ दैट. बट यूर टॉकिंग ऑफ स्मॉलर कंपनीज, प्राइवेट कंपनी पकड़ लो, दे कैन डू. क्लियर? सो मार्क दैट इज इंपॉर्टेंट. ये लोग ने दिया है शॉर्टर नोटिस अगर एजीएम के लिए एटलीस्ट 95% शुड कंसेंट. एनी अदर मतलब ईजीएम रहेगा सो रिप्रेजेंटिंग 95% ऑफ द शेयर कैपिटल. नाउ टेल मी नोटिस का कंटेंट्स में क्या होगा. जैसे हम लोग ने देखा टाइम, प्लेस ऑफ मीटिंग, डेट ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग, agenda will be given. Can you give a notice through electronic means? Can you give a notice of meeting through electronic means? Yes, ईमेल पे भेज दो. आजकल क्या होता है ईमेल पे ही आता है, तो वो बोल रहे ईमेल. अभी इसके अंदर है ना, देखो इतने सारे पॉइंट्स हैं. कोई बोलेगा एक नोटिस ऑफ मीटिंग इलेक्ट्रॉनिकली में इतना बड़ा पॉइंट्स कैसे. तो सिंपल सी चीज बोल रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में वो लोग बता रहे कि फिजिकल जो फॉर्म है फिजिकल नोटिस और इलेक्ट्रॉनिक नोटिस में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पहली बात. दूसरा, ये तुम्हारे लेटेस्ट रजिस्टर्ड आईडी पे जो दिया है उधर आना चाहिए. तीसरा, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और पीडीएफ डाउनलोडर भी देना चाहिए, क्योंकि कल उठ के कोई बोलेगा मेरे पास पीडीएफ डाउनलोडर नहीं है. ओके अगर मैंने एंड यू हैव टू ऑप्ट. अगर मैंने लिखा कि मैं बोल रहा हूं कंपनी को मेरे को ईमेल आईडी पे नोटिस भेज दो, तो क्या फिजिकल नोटिस देना जरूरी है? नो. अगर इलेक्ट्रॉनिकली दे दिया तो फिर फिजिकल नोटिस देने की जरूरत नहीं है. तो सेम इसके पॉइंट्स को पढ़ सकते हो. नाउ पर्सन्स एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस अभी भी हम लोग दे रहे हैं. किस किस को देना चाहिए? एवरी मेंबर, एवरी ऑडिटर, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शुड गेट द नोटिस ऑफ द मीटिंग. नाउ टेल मी वन थिंग. एक इंसान को नोटिस मिला नहीं तो वो सडनली आके मीटिंग में बोल सकता है ये जो भी प्रोसीडिंग्स है सब इनवैलिड है. इज नॉन रिसीट ऑफ नोटिस गोइंग टू इनवैलिडेट द मीटिंग? सबको मिला बट थोड़े लोग को नहीं मिला, तो थोड़े लोग दे गेट एंग्री एंड दे कम इन द कंपनी एंड दे से ये जो भी तुम लोग ने रेजोल्यूशन पास किया सब इनवैलिड है, मेरे को इन्फॉर्म ही नहीं किया है. चलेगा ऐसा? मीटिंग वैलिड होगी कि नहीं? नहीं वैलिड नहीं होगी अगर किसी को नोटिस नहीं दे पाए तो. वैलिड और इनवैलिड? या. सो फर्स्ट थिंग इज इफ इट इज अ एक्सीडेंटल ओमिशन, it was inadvertently not given. Inadvertently means by mistake it was not given, then the meeting will be valid. Okay, it will not invalidate the proceedings at the meeting. ये भी मार्क करो इंपॉर्टेंट. तो ये केस लॉ दिया हुआ है. नॉन एक्सीडेंटल मीन्स इट वॉज नॉट डेलिबरेट. अब क्या होता है इन ऑर्डर टू बी सेफ कंपनीज क्या करती है, कंपनी सेक्रेटरी उसका पब्लिक अनाउंस वो कर देते हैं और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट. तो इट इज डीम दैट यू हैव गॉट द नोटिस. नोटिस टू डायरेक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट SS2 के बारे में भी दिया है. नोटिस के साथ में क्या आएगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. क्या हर मैटर के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट चाहिए? फॉर विच मैटर्स एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज नीडेड? फॉर विच काइंड ऑफ बिजनेस? ओनली फॉर स्पेशल बिजनेस. And what is special business? Everything other than ordinary business. Everything other than अड्डा is ordinary business. अब तुम मुझे बताओ, खाली एक छोटा सा क्वेश्चन है. ये रहा अपना 102 किया था हम लोग ने, स्पेशल और ऑर्डिनरी. एवरीथिंग एल्स इज अ स्पेशल बिजनेस. स्पेशल बिजनेस के लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए स्पेशल बिजनेस के लिए?
वो एकदम ही गलत कॉन्सेप्ट है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. लोग काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन. वो ऐसा है ही नहीं. ये खाली टू नो के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है कि नहीं. देयर इज नो कनेक्शन. सो इन द कंपनीज एक्ट दे विल टेल यू कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए या स्पेशल रेजोल्यूशन. जस्ट बिकॉज ये कॉमन वर्ड आ गया है स्पेशल और ऑर्डिनरी, देयर इज नथिंग टू डू विथ रेजोल्यूशन. समझ में आया? तो उतना ही जितना सनी देओल और सनी में डिफरेंस है उतना ही तुम्हारा ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस में. नो कनेक्शन एट ऑल. समझ में आया? तो ऑर्डिनरी, जस्ट बिकॉज वन वर्ड सेम है डजंट मीन दैट दे आर सेम, राइट? तो दैट बाइफर्केशन इज ओनली गिवन टू नो के एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है कि नहीं. कौन से मैटर्स स्पेशल, कौन से मैटर्स ऑर्डिनरी, वो तुमको स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा. Now let's see the next. Quorum. Now we are coming to next section, that is section sequence में देखते हैं. Section 103. What is quorum? Quorum is the minimum number of people required to start a meeting. तो ये मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट. ये लोग ने यहाँ पे उसको समराइज किया हुआ है. लेट अस रिमेंबर में. व्हाट इज द क्वोरम ऑफ द मीटिंग? प्राइवेट कंपनी के लिए क्या क्वोरम है? प्राइवेट कंपनी के लिए क्वोरम क्या है? सी द बी पार्ट. 2 members पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द क्वोरम फॉर द मीटिंग. और पब्लिक कंपनी में व्हाट इज द क्वोरम? तो डिपेंडिंग के कितने मेंबर्स है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर 1000 है, 1000 to 5000 है, और लास्ट में ग्रेटर देन 5000 है, तो उसके बेसिस पे क्वोरम डिसाइड हो रहा है. अगर 1000 अप टू 1000 है तो कितना मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए? 5, 15, 30. तो अगर मेंबर्स 1000 तक है तो 5 लोग का पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है. दैट इज द क्वोरम ऑफ द मीटिंग. अगर 1000 से 5000 मेंबर्स है तो क्वोरम क्या होगा? 15. और अगर 5000 से भी ज्यादा है तो कितना क्वोरम होगा? 30. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन क्वोरम. अगर क्वोरम नहीं है तो मीटिंग क्या हो जाती है? shall stand adjourned to the same day next week at the same place etc. एंड अगर requisitionist की मीटिंग adjourn हो रही है तो क्या होता है? इट ऑटोमेटिकली स्टैंड्स कैंसिल्ड. इनकी मीटिंग adjourn नहीं होती है. requisitionist ने जो सेक्शन 100 में इमरजेंसी मीटिंग बुलाए, इमरजेंसी बोल बोल के खुद ही कोई भी नहीं आया. adjourn मीटिंग में नोटिस देना जरूरी है. नॉर्मल मीटिंग में तो हम लोग देते हैं. क्या adjourn मीटिंग में नोटिस देना जरूरी है? So let's see. Where the meeting stands adjourned to the same day next week next time, the company shall give at least 3 days notice. तो कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? 3 days का नोटिस तो देना पड़ेगा. नो क्वोरम इन द adjourn मीटिंग. अगर adjourn मीटिंग में भी क्वोरम नहीं है तो पहली मीटिंग में क्वोरम नहीं आया, adjourn हो गई मीटिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्वोरम, और नेक्स्ट मीटिंग में भी क्वोरम नहीं है तो क्या होगा? द मेंबर्स प्रेजेंट, फिर मेंबर्स प्रेजेंट नॉट बीइंग लेस देन 2 विल बिकम द क्वोरम. समझ में आया? मतलब क्या है समझाता हूं. No quorum. If at a adjourned meeting also a quorum is not there within half an hour, the members present not being less than 2 will constitute the quorum. तो पहली मीटिंग में कोई नहीं आया, दूसरी मीटिंग में भी कोई नहीं आया, तो लॉ क्या बोल रहा है? दूसरी मीटिंग में जितने भी आए ना, नॉट बीइंग लेस देन 2 इज द क्वोरम. तो लोग डर के आएंगे कि भाई ये थोड़े जन मिलके कुछ भी ऑर्डर पास कर देंगे. इसके लिए adjourn मीटिंग में अगर क्वोरम नहीं है वापस तो देन द मेंबर्स प्रेजेंट विल बिकम द क्वोरम. समझ में आया ये? तो adjourn मीटिंग में आना चाहिए कि नहीं? तो उस लोगों को आएंगे क्योंकि कुछ भी रेजोल्यूशन पास हो सकता है.
अगर adjourned मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ तो हम अज्यूम क्या करेंगे, व्हाट इज द डेट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पासिंग द मीटिंग. adjourned मीटिंग का डेट लेंगे कि ओरिजिनल मीटिंग का डेट लेंगे. व्हेन इज द रेजोल्यूशन पास. तो सोचो 20 तारीख को ओरिजिनल मीटिंग थी, वो adjourn हो गई और adjourn 29th को हुई. दिस इज द adjourn मीटिंग. और यहां पे कोई डिसीजन पास किया तो हम अज्यूम क्या करेंगे, व्हाट इज द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन, 20th और 29th. डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन 29th. देखो यहां पे क्या लिखा है, वेयर अ रेजोल्यूशन इज पास्ड एट अ adjourn मीटिंग, the resolution shall be treated as passed on the day it was actually passed and not earlier date. Clear है ना. Now coming to chairman, ये तो हम लोग का section 103 भी हो गया. Now we are doing section 104. 104 is about chairman. तो quorum present होगा तो chairman बैठेगा, chairman बैठेगा तो फिर proxies को count करेगा. Section 105 is about proxy. क्लियर है ना. तो ये अपने को, और सेक्शन 100 हम लोग ने देखा था, 100 क्या था, EGM. और वैसे ही हम लोग ने देखा था सेक्शन 96 was about AGM. ठीक है. तो ये ऑर्डर में लर्न करना है हमें सेक्शंस, और ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, बैराक से पढ़ो या कहीं से भी. नेक्स्ट, let's see chairman of the meeting. So it's a very simple concept. Chairman. So chairman presides over the meetings. It will be among the board of directors only they will decide who is the chairman of the meeting. He gets a special vote called as the casting vote. Then the auditor should be present at the meeting. Now coming to the next section, that is proxy. मार्क प्रॉक्सी इज इंपॉर्टेंट. सो प्रॉक्सी क्या होता है, मैं नहीं जा सकता, किसी और को भेज देता हूं मीटिंग में, वो हो जाएगा प्रॉक्सी. प्रॉक्सी को मेंबर होना जरूरी है. प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर. मैं किसको भेज रहा हूं प्रॉक्सी, मेरे को 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग बता देना पड़ेगा. नोटिस के साथ में ही प्रॉक्सी फॉर्म आएगा. वो प्रॉक्सी फॉर्म में मैं फिल करूंगा कि भाई मैं ये शेयर होल्डर हूं, मैं मेरे प्रॉक्सी सो एंड सो को भेज रहा हूं, 48 आज बिफोर द मीटिंग मेरे को डिस्पैच करके देना पड़ेगा. समझ में आया. खाली सेक्शन 8 कंपनी जो है ना, वहां पे प्रॉक्सी हैज टू बी अ मेंबर. सेक्शन 8 कंपनी एनजीओ हो गई, तो दे वांट लाइक माइंडेड पर्संस ओनली टू कम इन. सो अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय अ मेंबर टू अटेंड एंड वोट इन हिज एब्सेंस इज कॉल्ड एज अ प्रॉक्सी. प्रॉक्सी इज लाइक हिज एजेंट टू अटेंड द मीटिंग. So a person who is entitled to attend and vote can appoint another to attend and vote on his behalf. Who can be a proxy? So proxy has to be a natural person. Natural person. Disabilities of proxy. Can the proxy speak at the meeting? Can the proxy speak? So he cannot speak. और वो वोट भी कर सकता है तो सिर्फ पोल पे. प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड इन द क्वारम, बिकॉज क्वारम में क्या लिखा है, मेंबर्स शुड बी पर्सनली प्रेजेंट. मेंबर्स ही काउंट होते हैं, प्रॉक्सीज काउंट नहीं होते. एंड अ प्रॉक्सी कैनॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स. तो शो ऑफ हैंड में वोट नहीं कर सकते, तो कहां पे वोट कर सकता है वो, पोल में, डब्बे में डाल सकता है वो. रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ प्रॉक्सीज दैट यू कैन कैरी. क्या बोला, मैक्सिमम कितने प्रॉक्सी कैरी कर सकते हो, मैक्सिमम 50 प्रॉक्सीज, और वो भी तुम्हारा होल्डिंग 10% से ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए. सो आई विल एक्सप्लेन. अ मेंबर ऑफ a company registered under section 8 shall not be entitled to vote any person other than a proxy unless that person is also a member. तो section 8 company में proxy also has to be a member. now proxy में लिख रहे कि let's see, so
Pay attention for proxy, okay? Then we'll be done. Proxy भाई साहब, proxy कौन सा section है? 105. How many proxy can you carry? You can carry maximum 50 proxies representing maximum 10% वोटिंग. तो समझते, कैन आई टेक प्रॉक्सीज ऑफ 51 पर्सन्स? यस और नो में आंसर देना. 51% का प्रॉक्सी ले सकता हूं? नहीं. वो बोलेंगे बहुत सारे लोगों का लेके जा रहे हो. अगर मैं ही अकेला फ्री बैठा हूं, सब बोल रहे मेरा भी डाल दे वोट, मेरा भी डाल दे. मैक्सिमम कितने लोगों का वोट डाल सकता हूं? मैक्सिमम 50. उसमें से भी सबका मैक्सिमम 10% वोटिंग राइट्स हो सकता है, नॉट मोर देन दैट. तो लेट्स अंडरस्टैंड. सो इफ आई एम कैरिंग प्रॉक्सी ऑफ 50 पीपल और वो लोग सबका मिला के एग्रीगेट होल्डिंग, ओके, सिर्फ 10%, 5% है, तो क्या मैं वोट लेके जा सकता हूं इतने लोगों का? तो आई एम टेकिंग ऑफ लेट्स से 50 पीपल वैलिड है, और वहां पे भी जो लेके भी जा रहा हूं सिर्फ 5% जितना, तो वैलिड है वो. यस. बट अगर सोचो कि मैं 50 लोगों का लेके जा रहा हूं और उनका 12% आ रहा है, कैन आई टेक? देन आई हैव टू रिड्यूस. तो दोनों ही मेरे को कंप्लाई करना पड़ेगा. मेरे को इंश्योर करना पड़ेगा कि अप टू 50 हो और अप टू 10% हो. अगर ज्यादा हो रहा होगा तो मेरे को किसी एक का कम करना पड़ेगा, सिर्फ 40-30 लोगों का लेके जाना पड़ेगा. मैं 2 लोग का भी लेके जाऊं ना, सिर्फ 2, और मेरा स्टेक 10% के ऊपर जा रहा है, तो मेरे को बोलना पड़ेगा आई कैन नॉट. सो इट हैज टू बी 50% ऑल्सो, एंड द मैक्सिमम वोटिंग दैट आई कैन गो टू पुट इज ऑफ 10% ओनली. सो लेट्स सी. अगर 50% का लेके गया रिप्रेजेंटिंग 7%, चलेगा ये? यस. 27% इनका देखने जा रहे तो 20% वोटिंग राइट्स आ रहा है, तो आएगा आंसर नो. फिर मेरे को कम करना पड़ेगा लोगों को, तो दोनों ही मेरे को लिमिट्स इंश्योर करने पड़ेंगे. रिस्ट्रिक्शन यू कैन सी. बट अगर मैं सिंगल पर्सन का, ये कब हो रहा है? व्हेन आई एम टेकिंग क्यूमुलेटिव, मैनी मोर देन 1 का लेके जा रहा हूं. अगर एक ही बंदे का लेके जा रहा हूं और बहुत सब स्टेक है तो चल जाएगा. दिस लिमिट इज व्हेन यू आर टेकिंग मोर देन 1. मैक्सिमम यू कैन टेक ऑफ 50 पीपल, एंड दैट टू द stake that you are representing should also be within 10. If it is not, then tell please don't take a few people. Then they have given proxy should be deposited 48 hours before the meeting. Someone can come and inspect the proxy register also. The register should be there, should be maintained. This is about revocation of proxy. So how can a member revoke the proxy? He can give a notice. Or if the member and the proxy both attend the meeting, then who will be asked to leave? If member has also attended the meeting and even proxy has come with the proper proxy form, तो किसको preference मिलेगा to attend the meeting? Member will attend, and the proxy को बोलेंगे आप घर पे जाओ, आपका proxy is deemed to be cancelled. So proxies authority is cancelled when the member attends the meeting. So this is about proxy. Now, okay, so we were seeing section 106, which talks about restriction on voting rights. Tell me one thing, can we restrict a member from voting? Yes or no? I tell him तेरे को allowed नहीं है vote करने को, चलेगा? No, but in 2 cases we can restrict his voting rights. First, this is important. First, if he has not paid his call money, not being paid the money on time, so we would not give. Or second, if company is exercising a right of lien. Right of lien means what?
if he has to recover a lawful due, if he has done a loss to the company, so we are forcefully taking possession of his shares. Next, so it's a small section. Next, voting by show of hands. I always said, always voting is done of any meeting is first put to vote through show of hands. तो अगर कभी भी कोई matter is being put to vote, it will first be taken by show of hand. Unless a poll is demanded, someone demands नहीं हम लोग को show of hands नहीं करना है, let us have a poll. Poll is basically in that ballot paper is there. Ballot paper will be there. In the ballot paper you put your assent and dissent, number of shares that you hold. So accordingly you can vote. Okay. Now section 108 talks about voting through electronic means. Now this is there in Companies Act 2013, section 108. It's very important. You need to know. Along with the rule number. Okay. Now section 108 basically talks about how can you vote through electronic means. Now they first give you a small introduction on why it was introduced. Why was this introduced? Because shareholders cannot travel to the registered office to go to vote who are having minuscule or minor holdings. They cannot travel up to the registered office to vote. So in that case, to facilitate them, to empower them, to allow them also to vote, the e-concept voting has been introduced. This does not mean that a physical meeting will not happen, physical voting is not there. It is just an additional technique of voting that will be given. So if company takes a e-voting, is physical voting option is also there or it won't be there? So physical voting will also be done, a meeting will be called. So let's see, e-voting does not eliminate the members' right to physically attend and vote in the meeting. ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऑनलाइन ही करना ही पड़ेगा. It's a option given. Now e option किसको देना पड़ता है? तो सेक्शन 108 states that every listed companies and every company having 1000 or more members should give an option to their shareholders. If they want, they can come and physically vote in the meeting, attend and vote, or vote through electronic means. Okay. Now certain companies are outside the ambit of e-voting facility. Those whose debentures are only listed or their preference shares are only listed and the equity shares are not listed. Or second, who are listed on the SME platform. SME is for small, medium enterprises. Or those who are on institutional trading platform. Now what is institutional trading platform? We'll see in SEBI later on. Now procedure for e-voting. Let's see. Who do you think is going to be in charge of handling this entire e-voting? So it is that of the company secretary ensures. So therefore this is a very important section for us, section 108. It's important. Now in this, first thing, company secretary ensures. Now I'll ask one of y'all, how will you manage this? Do you think it's a very big aspect, very big thing? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर टाइम कंपनी में मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग्स होती ही है, शेयर होल्डर्स मीटिंग होगा ही. मीटिंग के अंदर लिस्टेड कंपनीज होती है, 1000 के ऊपर होगा तो ई वोटिंग फैसिलिटी देना ही पड़ेगा. अब ई वोटिंग फैसिलिटी के क्या प्रोसीजर है, कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले तुम्हें एक नोटिस भेजना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, कंपनी का नोटिस. तो यहाँ पे देखोगे नोटिस ऑफ मीटिंग. हम जस्ट जनरली अंडरस्टैंडिंग कि क्या होता होगा. नोटिस ऑफ मीटिंग, सबको बोलेंगे कि मीटिंग है ये तारीख को. अगर आप चाहो ऑप्शन देना पड़ेगा उनको, ऑप्शन टू ई वोट. इफ यू वांट यू कैन ऑप्ट फॉर ई वोटिंग फैसिलिटी देंगे. अब
ई वोटिंग तुम्हारे ईमेल आईडी पे आ जाएगा कि तुम असेंट और डिसेंड कर सकते हो. यू कैन ईदर अप्रूव और डिसअप्रूव, एंड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस यू विल गिव योर असेंट एंड डिसेंट. या तो ईमेल पे डाल सकते हो या अपना पोस्टल बैलेट पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो. नाउ ये जब करोगे तब वहाँ पे काउंटिंग होगी. कोई बंदा बैठेगा वहाँ पे, इसको एज अ स्क्रूटेनाइजर. ये स्क्रूटेनाइजर काउंट करेगा कि किसने हाँ बोला, कितने, पूरा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर से काउंटिंग करेगा. ये जो भी ई वोटिंग फैसिलिटी है NSDL CDSL की साइट होती है, क्योंकि लिस्टेड होता है तो उनकी साइट्स के ऊपर से जाके मैं वोट कर सकता हूँ. कट ऑफ डेट देंगे कब तक वोट करना है तुम्हें, फैसिलिटी देके. चेयरमैन विल बी देयर, जो स्क्रूटेनाइजर्स काउंट करके चेयरमैन को बताएंगे कि रिजल्ट क्या है, एंड द चेयरमैन विल डिक्लेयर इट एंड ऑल्सो पुट इट ऑन द कंपनीज वेबसाइट. नोटिस ऑफ मीटिंग विल बी गिवन, डिस्क्लोजर्स विल बी गिवन. नेक्स्ट इज ई वोटिंग. मार्केट एज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. इसमें क्या है कि मीटिंग, जनरल मीटिंग यहां पे होगी. तुम्हें क्या लगता है ये जो वोटिंग होने वाला है इसके पहले खत्म होगा कि बाद में? वोटिंग इसके पहले कंप्लीट होगा कि बाद में? अब जो ई वोटिंग फैसिलिटी है ये 3 days प्रायर 5 PM को एंड हो जाएगा. तो इसके पहले जिसको भी वोट करना है इधर वोट कर सकते हैं वो लोग, और ये उन लोग डिक्लेयर करेंगे कट ऑफ डेट क्या है, कब एंड हो जाएगा, उसके बाद आप ई वोट नहीं कर पाओगे. अब जब तुम ई वोट किए तो रजिस्टर हो गया कितने कितने वोट्स हुए, जितने भी लोग ई वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. फिर एक जनरल मीटिंग होगी. जनरल मीटिंग के अंदर जिसने इलेक्ट्रॉनिकली वोट नहीं किया वो लोग आके फिजिकल वोटिंग कर सकते हैं. फिर सब काउंटिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक भी काउंटिंग होगी, फिजिकल भी काउंटिंग होगी. फिर लेटर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा. डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. समझ में आया? यू टेल मी, अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिकली वोट किया तो क्या मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूं? कैन आई फिजिकली अटेंड द मीटिंग देन? आई कैन ऑब्वियसली अटेंड, बट कैन आई वोट अगेन? No, I have already e-voted, so I cannot come and vote again. Neither can I change the meeting, but I can come and participate in the discussions. एक रजिस्टर मेंटेन करेगा स्क्रूटेनाइजर. वोटिंग जनरल मीटिंग में भी होगी. डिक्लेरेशन ऑफ वोटिंग रिजल्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस. वो जो डब्बे हैं, जो लोग ने फिजिकल वोटिंग में बैलेट डाला होगा उसको 2 विटनेसेस के सामने ओपन करेंगे, कितने काउंट करेंगे, कितने वोट्स इन फेवर, कितने वोट अगेंस्ट. चेयरमैन को डिक्लेयर करेंगे एंड चेयरमैन विल डिक्लेयर. अब ये पूरा चीज अंडर स्क्रूटनी एंड सुपरविजन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी होगा. नाउ so we are done. You can mark that section 108 is super important. Now coming to demand of poll, very simple provision. All matters are first put to vote by show of hands unless a poll is demanded. जब पोल ऑर्डर करेंगे तो लेट्स सी कौन डिमांड करेगा कि नहीं नहीं हमें, वी डोंट वांट टू गो थ्रू शो ऑफ हैंड्स, आप प्लीज डब्बे में पोलिंग डालो, पोलिंग पेपर और सब. तो एक बंदे का एक ही शेयर है कंपनी के अंदर. यू थिंक ही शुड बी अलाउड टू डिमांड? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, सब जिनका बहुत सारा स्टेक है वो लोग चुप बैठे हैं, और एक बंदे का एक ही शेयर है, बोल रहे नहीं नहीं मैं शो ऑफ हैंड नहीं, मैं चाहता हूँ कि पोल हो, डिमांड हो. यू थिंक ही शुड बी अलाउड? और कोई लिमिट लगना चाहिए कि इतना तो होल्डिंग होनी चाहिए टू डिमांड अ पोल. तो ये लोग ने देखा है हु कैन डिमांड पोल. कम से कम उसके पास में 1/10 ऑफ वोटिंग पावर होना चाहिए और 5 लाख रुपीज. अगर ये 5 लाख रुपए या 1/10 का वोट है, तो सोचो मेरे पास में 10% स्टेक है तो आई कैन डिमांड अ पोल. या मेरे पास में 6 लाख का स्टेक है कंपनी के अंदर तो भी मैं डिमांड कर सकता था. मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ होल्डिंग है तो डिमांड कर सकते पोल. अब जब पोल डिमांड किया तो व्हेन शुड इट बी टेकन? सोचो कि चेयरमैन पूछ रहा है कि डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन XYZ कंपनी, काइंडली पुट अप योर हैंड्स इफ यू आर अग्रीइंग. काफ़ी लोग ने शो ऑफ हैंड्स किया, बट
a person holding 20% stake, he said no, I want by poll, by show of hand, by poll. अगर पोल डिमांड हुआ तो कभी वो डब्बे में डालेंगे, पेपर बांटेंगे, पेपर में लोग साइन करके डब्बे में वापस डालेंगे, तो कब तक होगा? सो इट शुड बी टेकन, लेट्स सी, not later than 48 hours from when the demand was made. So you tell me, a poll shall be taken at such time not later than 48 hours, मतलब within 48 hours. तो या तो immediately meeting के बाद, या you can tell them go and vote, they can do that, या 48 hours के अंदर वो लोग रख देंगे. Except for two matters के लिए the meeting will be taken forthwith. So let's see, a poll shall be taken forthwith. Forthwith means immediately, तभी का तभी लेना पड़ेगा. In all other matters 48 hours के अंदर. दो चीज कौन सा है? For adjournment of meeting and second for appointment of chairman. Mark it as important. So if a poll is demanded, मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये जो मैटर है इसको पोल में लो, डब्बे में डाल के वो लो, ऐसा हाथ वाथ मेरे को नहीं चाहिए. तो पहले मेरा स्टेक देखेंगे कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं टू डिमांड अ पोल. फिर पोल विल बी टेकन विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. तो हो सकता है मैं बोलूँ कल आ जाना, अब कल हो सकता है, या सबको मैं पोस्टल बैलेट के थ्रू भेजूँ और वो लोग पोस्ट पे भेजे, या इलेक्ट्रॉनिकली वोट करें, या फिर मीटिंग जैसे अभी हम लोग कर सकते हैं विद इन, मतलब इमीडिएटली भी हो सकता है. कोई मैटर्स के लिए ऑन द स्पॉट काउंटिंग होगी. वो दो मैटर्स कौन से हैं? एक है अडजर्न करना है कि नहीं मीटिंग, क्योंकि रुक नहीं सकते हैं, और दूसरा चेयरमैन अपॉइंट नहीं कर पा रहे, तो चेयरमैन कौन होगा फॉर दीज मैटर्स. नाउ कमिंग टू दिस, सबका प्रोसेस सेम होता है. प्रोसेस ऑफ पोल, सब वोटिंग डालेंगे, वहाँ पे एक पोलिंग पेपर बटेगा. पोलिंग पेपर किस में होगा? विल बी इन MGT 12. यहाँ पे दिख रहा है. तो MGT 12 में वो पेपर होगा, बैलेट पेपर, जिसके अंदर असेंट और डिसेंट डालेंगे. एक बार बैलेट पेपर में डालेंगे, फिर लोग वहाँ पे स्क्रूटिनाइजर्स काउंट करेंगे उसको, फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा. लेट्स सी वेयर, and then the chairman will give his report in MGT 13. तो MGT 12 में डब्बा होगा पोलिंग पेपर एंड MGT, तो एक I'll teach you all a method also where you will know all the forms. MGT 13 के अंदर chairman will give his report. MGT 14 we know special resolution. अब आता है, इसको भी मार्क करो, important concept is super simple, postal ballot, but you should know section by heart. पोस्टल बैलेट क्या होता है? वोटिंग थ्रू पोस्टल मीन्स और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. तो जस्ट अ लिटिल बिफोर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स देयर वाज पोस्टल बीट मेथड अवेलेबल. सबसे पहले वो लोग क्या बोल रहे थे, अगर वोटिंग करना है तो मीटिंग में आओ. अब मीटिंग में सब नहीं आ सकते थे, तो बोले एक काम करो, घर से ही आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो. तो वो कॉन्सेप्ट था पोस्टल बैलेट. अब लोग बोल रहे रजिस्टर पोस्ट से भी जाने का, पोस्ट ऑफिस में जाओ, इससे चाहे इलेक्ट्रॉनिकली भी कर लो. सो टाइम के साथ में पहले फिजिकली आना पड़ता था वोटिंग के लिए, फिजिकल वोटिंग होती थी. फिर थोड़ा थोड़ा फैसिलिटी दिए कि पोस्ट से भी कर सकते हैं, और फिर अभी अच्छा फैसिलिटी आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑल ऑफ दिस वोटिंग का, हाउ द वोटिंग हैज ग्रेजुअली बीन, यू कुड से used or implemented. Now postal ballot means voting through post. घर से, तो हम लोग के भी घर पे आया था, जो भी रहता है तुम्हारा yes no डाल के पोस्ट से रिटर्न भेज देने का. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर्स दैट शैल बी ट्रांजैक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट. ये जो बड़े बड़े मैटर्स रहते हैं, बोलते हैं कि एक काम करो पोस्टल बैलेट के थ्रू ही होगा, या तो वोटिंग के थ्रू लो इलेक्ट्रॉनिकली, या पोस्ट के थ्रू. Why? Because these matters are very important and we need larger participation. पोस्ट से तो ज़्यादा डाल ही सकते हैं. मैं चलो दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, बट वोट तो कर सकता हूँ. तो ऑल्टरेशन ऑफ MOA AOA, मार्क करो, ये एग्जाम में आता है.
what other matters. So mostly you see MOA, AOA related, all these big matters will be there. Then the process will be same. Imagine if a resolution has been passed, can you rescind it? Can you cancel a resolution which has already been approved by the people, shareholders? Yes or no? Now, if we have decided something and we want to change it or we want to cancel it, then it can only be done by a subsequent resolution. तो वापस resolution pass करो saying that the previous resolution has been cancelled. That's how you can rescind, withdraw a resolution or modify a resolution. Circulation of members resolution not important, cancel. Now coming to another important simple aspect which is called as the minutes of the meeting. Minutes of the meeting is basically the matters transacted at the meeting is contained in the minutes. Minute contains a recording of the meeting. It's a written record of the meeting. Minute के अंदर क्या होता है? It is first of all prepared by the company secretary. He writes what time the meeting started, who was the chairman, what did he speak, what was the resolution passed, who voted in favor, who voted against, and all those aspects will be written. Now minutes is very important because अगर आज कोई मीटिंग हुई है तो क्या डिसाइड हुआ है वो कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सो ऑल द रेजोल्यूशंस आर रिटन डाउन इन द मिनट्स बुक और मिनट्स बुक आके शेयर होल्डर चेक भी कर सकता है. अब मिनट्स बुक एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, यूनिफॉर्मिटी, सेम मेथड से पेज पे नंबरिंग होगा उसका, चेयरमैन साइन करता है, उसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे, कौन आया, quorum present था या नहीं, summary of everything will be written. Now minutes जो रहता है it is signed later on by the this, and minutes has to be preserved also. Generally they say for 8 years, but they should try to preserve it permanently. Shall be preserved permanently because this is a evidence in court. So today if we resolve something, it's written in the minutes. And if we don't do it, shareholder can take the company to court. Duties of company secretary, just read everything right from calling the meeting, everything, scheduling the notice, agenda, minutes, checking all the functionalities are there, updating, and then we are done with the chapter. Now if we try to learn the sections, okay, now you can take a pen and all that. Now I'm telling you which are the important sections and we're trying to learn all the sections in order now. सबसे पहले हम लोग ने बोला था मीटिंग्स कौन से सेक्शन में आता है. एक होता है एजीएम. एजीएम इज अंडर सेक्शन एजीएम इज अंडर सेक्शन 96. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. फिर इसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा, ईजीएम कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 100. ठीक है, तो एक सेक्शन 96, दूसरा सेक्शन 100. फिर बाद में 101 से लेके काफी सब इंपॉर्टेंट होगा. 101 नोटिस ऑफ मीटिंग. कितने दिन का नोटिस देना चाहिए? 21 दिन का. शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं, यस, 95% का कंसेंट चाहिए. फिर अजन नोटिस किस किस को देंगे? सारे मेंबर्स, ऑडिटर्स, सबको भेजेंगे हम लोग, डायरेक्टर्स. फिर नोटिस के साथ में हम लोग एजेंडा भी अनेक्स करेंगे और उसके साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखेंगे. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सिर्फ 2 बिजनेसेस डिवाइड होता है. ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है और स्पेशल बिजनेस क्या होता है. जो ऑर्डिनरी बिजनेस इज अड्डा. अड्डा के लिए तुम्हें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा. फॉर स्पेशल बिजनेस यू हैव टू गिव अ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. फिर हम लोग बात कर रहे थे क्वारम. क्वारम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग. अब उन लोग ने डिवाइड किया था कि प्राइवेट कंपनी के लिए क्वारम क्या होता है और पब्लिक कंपनी के लिए क्या होता है. प्राइवेट कंपनी के क्वारम कितना होता है? 2 मेंबर्स. वेयर एज पब्लिक कंपनी के लिए 5, 15, 30.
डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स. अगर कंपनी में अप टू 1000 मेंबर्स है तो 5 का क्वारम, 1000 to 5000 मेंबर्स है तो फिर 15 का क्वारम हो जाता है, और अगर 5000 से ज़्यादा है तो 30 इज अ क्वारम. नेक्स्ट, क्वारम आ गया तो मीटिंग आगे प्रोसीड होगा, चेयरमैन प्रोसीड करेगा. चेयरमैन क्या होता है? ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स, ही हैज अ कास्टिंग वोट. ही चेयरमैन is to be present in the meeting. Now comes chairman आ गया, फिर उसके बाद में proxy आता है. Proxy is the next section. For proxy, if a person is not able to attend the meeting himself, a member who is allowed to attend and vote can appoint another who will attend and vote on his behalf. This is called as proxy. Proxy need not be a member except for Section 8 company. Section 8 company में proxy has to be a member. Next, proxy, you can hold a proxy for more than one person also, but maximum 50. Maximum proxy that you can carry is 50 or 10% of the voting share. 48 hours before the meeting, proxy form has to be given. If anyone wants, they can inspect the proxy form. Restriction on voting rights. So if you don't pay the call money or there is a lien, you can have a restriction on voting rights. Next, we are seeing section 110, which is important. Section 110 talks about postal ballot. Voting through postal means. Even 108 is important. Electronic means. तो अभी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. सारे ही 1000 और मोर मेंबर्स होते तो इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी देनी पड़ती है वो लोगों को वोट करने के लिए. फिर देन वी हैड सीन मिनट्स ऑफ द मीटिंग, दैट इज सेक्शन 108, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक. एंड लास्ट में एजीएम जब भी होता है तो एक रिपोर्ट चेयरमैन को देना पड़ता है कि एजीएम में क्या हुआ था. दैट इज गिवन इन section 121 and MGT 15 is to be given. So it's a report by the chairman on what happened in the AGM. So these are all your sections. Now coming to the form numbers. Form numbers भी देखोगे, it's a very simple technique. Register of members MGT 1, other security holders MGT 2, foreign register, ये तुम्हारा फॉरेन रजिस्टर है, इट इज गिवन इन योर MGT 3. अब ये जो भी था ये सेक्शन 88 में दिया है. अब ये सेक्शन 89 की बात है. ओके, सेक्शन 89 इज अबाउट बेनिफिशियल ओनर कौन है, रजिस्टर्ड ओनर कौन है, एंड कंपनी इंटीमेट्स. सो ऑल दिस इज नॉट देयर इन दिस चैप्टर बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न इन सीक्वेंस. तो सेक्शन MGT 4, 5, 6. फिर तुम्हारे नेक्स्ट 3 फॉर्म्स जो है वो सेक्शन 92 रिलेटेड है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनुअल रिटर्न्स रिलेटेड. सो एनुअल रिटर्न्स इज साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी. वीव सीन अगर सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनी हैव टू गेट अ प्री सर्टिफाइड फ्रॉम अ PCS ऑल्सो, एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न हैज टू बी अटैच टू द बोर्ड रिपोर्ट. फिर ये जो रहता है ये अपना मीटिंग्स रिलेटेड है. अब मीटिंग्स ये अलग है, ये सेक्शन 93 है जो तुम्हारे पूरे बुक में है ही नहीं. लेट्स सी, ये रहने लो. फिर आता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इट इज़ अबाउट मीटिंग्स. और मीटिंग के सेक्शंस कहाँ से है? सेक्शन 88 टू 122. अब देखते हैं प्रॉक्सी फॉर्म. जो प्रॉक्सी होता है, नोटिस के साथ में प्रॉक्सी फॉर्म देना पड़ता है. दैट इफ अ मेंबर कैन नॉट अटेंड ऑन द मीटिंग ही कैन अपॉइंट अनदर. तो नोटिस के साथ में ही प्रॉक्सी फॉर्म जाएगा. प्रॉक्सी फॉर्म विल बी इन MGT 11. अब प्रॉक्सी जाएगा तो ही कैन नॉट स्पीक एट द मीटिंग बट ही कैन वोट, एंड दैट टू वोट थ्रू पोल ओनली. तो पोलिंग पेपर विल बी इन MGT 12. अब वो पोल डालेगा तो वहाँ पे काउंटिंग होगी. तो रिपोर्ट ऑफ स्क्रूटिनाइजर इज इन MGT 13. एक बार रिपोर्ट हो गया और सोचो कि स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत है तो MGT 14 इज स्पेशल रेजोल्यूशन. एंड
in your AGM क्या हुआ था, it has to be filed in MGT 15. Clear है ना? So these are your form numbers and that is it, and we are done with the meetings chapter.